Hello everyone. So this is our third lecture of class 8 science. Okay, as we have started chapter 1 and almost 50% of this chapter have been completed in the first two lectures. Okay, so in first two lecture we have seen why do we need to classify the living organisms. Okay, and we have seen the three kingdoms: kingdom Monera, Protista and fungi. Now in this lecture we are going to deal with the classification of microbes. Okay, so now how microbes are classified. So here one tree diagram is given to you. You can see the microorganisms are classified in two categories. First, that is prokaryotes and eukaryotes. Okay, so in the first two lecture also I have said what is meant by prokaryotic and what is meant by eukaryotic. Okay, so prokaryotic organisms are those organisms which do not have defined or complete formed nucleus and other cell organelles. Okay, whereas eukaryotic organisms are those which have nucleus and they have other cell organelles as well. Okay, so this is the basic difference between the prokaryotes and eukaryotes. Okay, now the microorganisms which are prokaryotic are nothing but bacteria. Okay, and under eukaryotes there are three categories: protozoa, fungi and algae. Okay, so one by one we are going to see what is bacteria, what are the characteristics of bacteria, what are the characteristics of protozoa, fungi, algae. And there is one more category under microorganism, and it is one of the most important category, that is viruses. Okay, so what is meant by virus we are also going to study in this particular lecture. Okay, now always remember these microorganisms are very minute. We cannot observe these microorganisms with our naked eyes. हम इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकते. ओके, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, माइन्यूट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो आप शक्कर का एक दाना लीजिए. टेक वन शुगर बीन. ओके, वेरी माइन्यूट स्मॉल शुगर बीन. टेक वन, एक शक्कर का दाना लीजिए और उसका आप हिस्सा कीजिए, डिवाइड इट. तो उसका जो वन लैक्थ पार्ट होगा वो क्या होगा, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज होगा. सो शक्कर का दाना ही कितना बारीक होता है हमें मालूम है. ओके, सो उसका 1 लाखवां हिस्सा जो होता है वो क्या होगा, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज होगा. सो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइज को हम लोग किससे रिफर करते हैं, वी रिफर द साइज इन माइक्रोमीटर्स. ओके, माइक्रोमीटर्स. यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा है, दिस इज म्यू. ओके, सो दिस पर्टिकुलर सिंबल इज यूज्ड टू फॉर माइक्रोमीटर. ओके, सो 1 मीटर मतलब कितना माइक्रोमीटर, 10⁻⁶ माइक्रोमीटर होता है. कितना, 10⁻⁶ माइक्रोमीटर. ओके, सिमिलरली हम लोग बहुत ज़्यादा माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइज को रिप्रेजेंट करेंगे नैनोमीटर्स में. किसमें, नैनोमीटर्स में. सो नैनोमीटर मतलब कितना, 10⁹ नैनोमीटर्स. ओके, 1 मीटर मतलब कितना नैनोमीटर, 10⁹ नैनोमीटर होगा. ओके, ये साइज हमें याद रखना है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁶ माइक्रोमीटर and 1 meter is equals to 10⁹ nanometer. Okay, so this is the conversion factor between the meter and micrometer and meter and nanometer. हम लोग माइक्रोब्स की साइज को यही 2 यूनिट्स में मेजर करते हैं, माइक्रोमीटर्स में और नैनोमीटर्स में. ओके, now one by one we will see this classification of microbes. Okay, now first bacteria. अब बैक्टीरिया का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग देखेंगे वन बाय वन. पहले तो हमें ये समझना है कि बैक्टीरिया क्या है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो जिनका सेल स्ट्रक्चर क्या है, प्रोकैरियोटिक है. ओके, दिस आर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरियाज आर नथिंग बट यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो organisms. So this organisms does not have a well defined cell organelles and nucleus. Okay, now what are the characteristics of bacteria? Okay,
Okay, these are unicellular, independent or parasitic organisms. Okay, independent means they does not depend on any other species for their nutrition. Okay, so they may be independent or they may be parasitic. Parasitic are nothing but means these organisms affect the other living organisms for their nutrition. Okay, so they act like a, they consider other organisms as host cell. Okay, sometimes they form colonies. Mostly these bacteria are found in colonies, okay, in clusters of like this. Now look at the figure here. You will find that there are n number of microorganisms together, okay. Second characteristic, prokaryotic with cell wall. So bacteria have a cell structure that is prokaryotic cell structure, and these bacteria have a cell wall, okay. They have a cell wall. They reproduce by simple binary fission. So the mode of reproduction in bacteria is very clear, that is it is simple binary fission. Okay, इनकी तादाद जो है वो कैसे बढ़ेंगी, बाय सिंपल बाइनरी फिजन. ओके, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, इन फेवरेबल कंडीशंस दे ग्रो विगरसली एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स. अगर कंडीशंस फेवरेबल है, मतलब ऐसे कंडीशंस में ये बैक्टीरियाज है जो उनके लिए सुटेबल कंडीशंस है, जहाँ पे वो उन्हें पर्टिकुलर न्यूट्रिशन जो है वो मिल रहा है आसानी से, तो ऐसे फेवरेबल कंडीशन में ये जो बैक्टीरियाज है वो उनका जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है. ओके, और वो डबल होते जाते, डबल के ट्रिपल होते जाते इन जस्ट 20 मिनट्स. बहुत ही जल्दी इनमें आपको रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा अगर ये बैक्टीरियाज फेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव कर रहे हैं. ओके, सो बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल क्या है, हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था. सो लैक्टोबैसिलस एग्जाम्पल है इसका. ओके, देन स्पिरिलम. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, इंडिपेंडेंट होंगे या फिर पैरासिटिक होंगे. ओके, पैरासिटिक मतलब क्या कि ये दूसरे स्पेसीज के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, और उस स्पेसीज को वो क्या करेंगे, नुकसान पहुँचाएंगे जिस स्पेसीज में ये पाए जाएंगे बैक्टीरियाज. ओके, ये ज़्यादातर कॉलोनीज में पाए जाते हैं, मतलब एक अकेला बैक्टीरिया आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन में नहीं मिलेगा, उसके साथ और भी उसी कैटेगरी के बैक्टीरियाज आपको देखने मिलेंगे. ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है, लेकिन इनके पास एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, दैट इज सेल वॉल. ओके, इनका जो रिप्रोडक्शन है वो सिंपल बाइनरी फिजन से होता है. ओके, और अगर फेवरेबल कंडीशन है तो ये रिप्रोडक्शन क्या होगा, बहुत ही फास्ट होगा, और इन 20 मिनट्स दे आर गोइंग टू डबल देयर नंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट इट इज प्रोटोजोआ. अब प्रोटोजोआ जो है वो क्या है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. क्या है, यूकैरियोटिक मतलब इनके पास न्यूक्लियस भी है और बाकी सभी सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है. अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रोटोजोआ के, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर. सम फाउंड इन बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड आर पैथोजेनिक. ज़्यादातर जो ये प्रोटोजोआंस होते हैं वो सॉइल, मट्टी में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी में, या फिर सी वाटर में मतलब खारे पानी में पाए जाएंगे. ओके, और कुछ प्रोटोजोआंस ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में पाए जाते हैं. ओके, और वो क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, मतलब इनसे हमें बीमारी लग सकती है. ओके, ये बीमार कर सकते हैं हमें, अगर हमारे बॉडी में प्रोटोजोआंस एंटर करेंगे तो वो हमें क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं. ओके, सो दिस आर पैथोजेनिक. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूनिसेलुलर है विथ यूकैरियोटिक सेल. एज डिस्कस इन द डेफिनेशन, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं मतलब सिंगल सेल के बने हुए हैं, और यूकैरियोटिक है. थर्ड, देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोटोजोआंस है उनका जो सेल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ही आपको ज़्यादा फर्क देखने मिलेगा. ओके, उनका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीन यहाँ पे एग्जाम्पल्स है. दिस इज यूग्लेना, ओके, दिस इज अमीबा एंड दिस इज पैरामोशियम. ओके, पैरामेशियम.
सो ये तीनों के तीनों का जो सेल स्ट्रक्चर है वो क्या है, इट इज़ वेरी डिफरेंट। ओके, एंड लोकोमोशन परफॉर्म करने के लिए इनके पास जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स है, वो भी क्या अलग अलग है। जैसे यूग्लेना के पास फ्लैजेला है, दिस इज फ्लैजेला। ओके, सो ये फ्लैजेला की मदद से लोकोमोट करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है यूग्लेना। वही अगर हम लोग अमीबा को देखेंगे तो अमीबा में क्या है, स्यूडोपॉड्स है। ओके, दिस इज स्यूडोपॉड्स। So amoeba perform their location by using this pseudopods. Okay, whereas in paramecium there is hair-like structure. Okay, cilia बोलेंगे इसे, हम क्या बोलेंगे, cilia. So ये जो hair-like structure है paramecium में, so paramecium ये hair-like structure का इस्तेमाल करता है locomotion perform करने के लिए. Okay, so this was the third characteristic of protozoans. What is the fourth characteristic? These organisms produce by simple cell division. इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सिंपल सेल डिवीजन के जरिए होता है। सिंपल सेल डिवीजन मतलब क्या, ये अभी ये पैरामोशियम है हमारे सामने। ओके, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ पैरामोशियम। अब क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है सबसे पहले वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। इट विल डिवाइड इटसेल्फ इन टू डिफरेंट पार्ट्स। ओके, और डिविजन्स, ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो पैरामेशियम है वो भी दो हिस्से में डिवाइड होने लगेगा। ओके, और फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, दोनों दो नए पार्ट्स हमें देखने मिलेंगे और ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पार्ट इज गोइंग टू सर्वाइव एज एन इंडिविजुअल पैरामेशियम। ओके, सो इस तरीके से सिंपल सेल डिवीजन होता है प्रोटोजोआंस में। So these are the characteristics of protozoas. Now we'll head towards next division or classification, that is fungi. अब फंगी मतलब फंगस, ये हमें भी मालूम है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो, पहला, फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो फंगी है या फिर फंगस जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, डिकेइंग मतलब जहाँ पे सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मैटर है, ओके, जो सड़ चुका है। सो ऐसे डिकेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर आपको ये फंगस देखने मिलेंगे, या फिर ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पर पाए जाते हैं। ओके, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स या फिर एनिमल्स पे पाए जाएंगे फंगस। ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इनका सेल स्ट्रक्चर क्या है, यूकैरियोटिक, मतलब इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। ओके, सम ऑफ द फंगस और मोस्टली फंगस आर सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक मतलब क्या, कि ये जो अपना न्यूट्रिशन है वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, जो चीज़ सड़ चुकी है या फिर अगर कोई प्लांट है, एनिमल है जो मर गया है, तो उसके बॉडीज से वो अपना क्या करेंगे, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, अब इनमें रिप्रोडक्शन क्या होता है, आइदर दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली और असेक्सुअली। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली होगा, मतलब देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट, और दे विल रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग। बडिंग का एक एग्जांपल है ईस्ट। ओके, बेकर्स ईस्ट आपको मालूम होगा, खमीर जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू मेक ब्रेड। सो वो भी क्या है, फंगी है। ओके, सो उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बडिंग होता है, उनमें क्या होता है, बडिंग। ओके, बडिंग से होगा या फिर सेल डिवीजन। असेक्सुअल मोड्स क्या है, सेल डिवीजन या फिर बडिंग। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी। एग्जाम्पल्स है यहाँ पे देखो, फंगस का एक एग्जाम्पल दिया है, मशरूम इज द फेमस एग्जाम्पल। सम मशरूम्स आर इडेबल एंड सम मशरूम्स आर नॉट इडेबल। इडेबल मतलब क्या, जिसे हम खा सकते हैं, कुछ मशरूम्स ऐसे होते हैं जिसे हम नहीं खा सकते। ओके, बिकॉज दे आर पॉइजनस। सो मशरूम एग्जाम्पल है, बेकर्स ईस्ट एक एग्जाम्पल है, और कैंडिडा ये भी क्या है, फंगी का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज अलगी। अब अलगी क्या है ये मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में भी। ओके, सो दीज आर, ओके, सम ऑफ द अलगीज आर यूनिसेलुलर, whether mostly they are found as multicellular. Okay, we can see algae, we can observe algae by our naked eyes. So algae क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। अगेन दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब क्या, ये पानी में पाए जाते हैं। ओके, दीज आर फाउंड इन स्मॉल स्ट्रीम्स, रिवलेट्स, रिवर बॉडीज, ओके, वाटर बॉडीज। सो इसलिए क्या कहा जाता है, इन्हें एक्वेटिक कहा जाता है।
देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक यूकैरियोटिक है, ये यूनिसेलुलर होते हैं और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से, मतलब क्या ऑटोट्रॉफिक मैंने बताया था आप लोगों को। व्हाट इज इन बाय ऑटोट्रॉफिक? दिस ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ये खुद का फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। फोटोसिंथेटिक है, ऑब्वियसली अगर ये ऑटोट्रॉफिक है तो फोटोसिंथेसिस में पाया जाएगा। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ओके, ये प्लांट्स में पाया जाता है या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, सो दिस इज हियर इन द फिगर यू कैन सी दिस इज अलगी, इट इज ग्रीन कलर अलगी। ओके, सो दे आर फोटोसिंथेटिक, मतलब क्या कि वो खुद का फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, दिस क्लोरोप्लास्ट गेट्स रिएक्टेड विद द सनलाइट, जब इनके ऊपर सनलाइट गिरेगी तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं। ओके, एंड दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ओके, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेरी फ्यू आर यूनिसेलुलर। मैंने पहले ही बताया आपको कि बहुत ही कम अलगी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ज़्यादातर ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होंगे। तो यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रहा है, इस इमेज में जो ये अलगी है वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। ओके, सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलगी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज वायरसेस। ओके, जिस वजह से आज हम लोग घर में बैठ के हमें पढ़ना पड़ रहा है, सो दैट इज वायरस। नाउ हमें सबको मालूम है कि वायरस क्या होता है और कितना खतरनाक होता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझने से पहले हमें यह समझना हो कि वायरस एक्चुअली है क्या। ओके, दिस वायरसेस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन जब तक ये वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में नहीं होगा, मतलब इफ दिस वायरस इज प्रेजेंट ऑन एन नॉन लिविंग थिंग, किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर अगर ये वायरस है तो वो क्या है, जिंदा नहीं है, इट इज़ डेड, वो किसी काम का नहीं है, इट इज़ नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर वो वायरस किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर बैठा हुआ है तो वो जिंदा नहीं है। ओके, इट इज़ डेड। लेकिन जैसे ही ये वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जब वो एंटर करता है, तब वो क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है। ओके, और ये वायरस क्या है, मोस्टली वायरसेस क्या होते हैं, हमारे लिए खतरनाक साबित होते हैं। ओके, दिज आर नॉट गुड फॉर आर बॉडी। अब वो हमारे लिए सही क्यों नहीं है, हमारे बॉडी के लिए खतरनाक क्यों है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, दिज आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरियाज। ये बैक्टीरिया से क्या है, 10 से 100 गुना ज़्यादा छोटे होते हैं। अब बैक्टीरियाज ही बहुत ज़्यादा बारीक होता है। ओके, बहुत ही माइन्यूट होता है, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, और वायरस बैक्टीरिया से भी 100 गुना क्या है, स्मॉलर है। सो बैक्टीरियाज को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वायरस को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, वी कैन नॉट ऑब्जर्व दिस वायरसेस अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टू ऑब्जर्व दिस वायरसेस वी हैव टू यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, now what is the second characteristics? They are found in the form of independent particles. Okay, ये independent particles है, अगर नेचर में है कहीं पे ऐसे ही किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर तो इनडिपेंडेंट पार्टिकल्स है। और ये क्या होते हैं, इट इज़ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए। सो डीएनए हमें मालूम होना चाहिए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इन द फॉर्म ऑफ आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, कवर्ड बाय प्रोटीन। तो ये एक्चुअली है क्या है? ये जो वायरस है वो एक मॉलिक्यूल है डीएनए का या फिर आरएनए का, और उसके ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग की हुई है। किसकी कोटिंग है, प्रोटीन की कोटिंग है। नाउ दे सर्वाइव इन होस्ट सेल, क्रिएट न्यूमरस रेप्लिका, डिस्ट्रॉइंग द होस्ट सेल एंड बिकम फ्री। अब ये क्या होते हैं, जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आए तो वो उसके बॉडी में एंटर करने के बाद उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे, उसमें अपना रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे, बहुत सारे रेप्लिकास तैयार करेंगे। मतलब ये 1 के 2, 2 के 4, 4 के 16, 16 के 32 होते जाते हैं फटाफट फटाफट। ओके, वेरी फास्ट। और फिर वो जिस सेल में एंटर करेंगे, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में है वो, उसके उस सेल को वो क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, और क्या हो जाएंगे, फिर फ्री हो जाएंगे।
and they will find someone new living organism for their survival. तो ये वायरसेस होते हैं, ओके। अब वायरसेस को स्टडी करने के लिए हमारे इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है जिसे हम लोग NIV बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये पुणे में है। कहाँ पर ये? पुणे में, जहाँ पर वायरसेस के ऊपर रिसर्च किया जाता है। अब जो कोरोना वायरस भी है उसके ऊपर भी रिसर्च यहीं पर हो रहा था। स्टार्टिंग का जो रिसर्च है कोरोना वायरस के ऊपर वो पुणे में हो रहा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, ओके। अब वायरस के एग्जाम्पल क्या क्या है? देखो, ह्यूमंस में जो वायरस देखने मिलते हैं वो है पोलियो। पोलियो से हमें बचना होता है। आपको मालूम है, सब छोटे बच्चों को 4 से 5 साल की उम्र तक के बच्चों को एक वैक्सीन दी जाती है इस वायरस से बचाने के लिए, इस पोलियो वायरस से बचाने के लिए। उसके बाद एक इन्फ्लुएंजा इसका एग्जाम्पल है। देन HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ओके, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ओके। इससे एड्स नाम की बीमारी होती है। एड्स आपको मालूम होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये भी, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत ही लेट समझ में आते हैं। अगर किसी को एड्स हुआ है तो उसको, अगर वो अपना रेगुलर चेकअप नहीं करवाता होगा तो फिर उसको बहुत सालों के बाद पता चलेगा कि उसको एड्स हुआ है, और जब तक पता चलेगा तब तक उसके बॉडी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डेंजरस वायरस, HIV। कैटल्स में, जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, काओ, बफेलोज, तो उनमें भी वायरसेस पाया जा सकता है, उनको भी वायरस लग सकता है। वो कौन सा है? पिकोरना वायरस है, ओके। प्लांट्स में भी वायरस होता है, टोमेटो विल्ट वायरस है, ओके। देन टोबैको मोजैक वायरस। आपको मालूम है सबसे पहला जो वायरस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए वो किस में डिस्कवर किए थे? तम्बाकू में, टोबैको में, ओके। तम्बाकू के पत्ते में डिस्कवर हुआ था सबसे पहला वायरस, टोबैको मोजैक वायरस। एक और एग्जाम्पल है, बैक्टीरियाज में भी वायरस लग सकता है। वायरस उस बैक्टीरियाज को भी खत्म कर सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज, ओके। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस, ओके। नाउ दिस वाज द लास्ट पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ओके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। आपका होमवर्क क्या होगा? जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करिए। उसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उसमें आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ओके। So we will meet in our next lecture, starting a new chapter in the next